Very good morning, class 11th biology. This is now third part of the first chapter, and it is the final part. With this video lesson, we can complete this chapter, right? So I hope you remember we studied about systematics, means systematic arrangement of organisms, living organisms, and the total organisms assumed in whole world is approximately 1.7 to 1.8 million. Then we also discussed about the scientific method of nomenclature that was given by Carolus Linnaeus. 3-4 rules were there that you have understood, I hope so. Okay, now today we shall see the last part. It was the third one. First was identification, second was nomenclature, and this third is classification. So this is again related to class 9th, right? Classification in class 9th you studied by R.H. Whitaker. It is modern classification. Before that also many classified the living organisms like Aristotle. Okay, right, like that. So this classification is generally, it is divided into two types: natural system of classification, मतलब प्लांट या एनिमल बाहर से कैसे दिखते हैं उसको देख करके उनको क्लासीफाई कर देना, उनकी कैटेगरी बना देना, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन. एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. Artificial classification. Okay, artificial classification means when you are going in inner characteristics, there is genetical characters, reproductive behavior, and many more things when you consider and then you classify, then it is artificial classification. Okay, ठीक है. So first let us see how R.H. Whitaker classified. So R.H. Whitaker classified all living organisms into 5 kingdoms. Can you remember what are 5 kingdoms? Moreira, Protista, Fungi, Plantae एंड एनिमेलिया. ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है. तो आर.एच. व्हिटेकर ने जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं सबको इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया. मोनेरा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक. प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. फंजाई यूनी और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. प्लांटे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर. एनिमेलिया यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर. But Plantae autotrophic, Animalia heterotrophic. On the basis of these some criteria, R.H. Whitaker classified all the living organisms into 5 kingdoms. So it is also called as 5 kingdom classification. Okay. But later on, another scientist, Carl Woese, in 1990, this scientist won a lot of prizes for giving the new and accepted
classification that is called as three-domain classification. Means Carl Woese didn't consider these 5 domains or 5 kingdoms. He considered 3 domains, right, for all living organisms. So those 3 domains are, the first domain is Archaea. Second domain he considered bacteria, and third domain he considered Eukarya. So these are 3 domains of life as per Carl Woese, 1990. Archaea and bacteria both are unicellular prokaryotic. And Eukarya are यूकैरियोटिक. अब वैसे ये एक टीचर एक्सपेक्ट करेगा आपसे दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells, but even I will clear it here also. See, if I have 2 cells, one is this, another is this, and if I draw the nucleus like this, and if I draw the nucleus like this, so you see it is looking well developed, means nucleus is properly developed, and here nucleus is not clearly developed, or membrane is not clearly developed, nuclear membrane. In cytoplasm only ribosome is present, but here Golgi body, endoplasmic reticulum, plastids, everything is present, but here no. So it is eukaryotic and it is prokaryotic. These are some basic things you need to keep in your mind, otherwise it will be difficult to understand the biological concepts. So on the basis of this eukaryotic and prokaryotic criteria, Carl Woese divided all the living organisms into 3 domains. 3 domains: Archaea, bacteria, Eukarya. Eukaryotic animals, bacteria and archaea, both are prokaryotic. I have sent you already the notes, you go through them, right? And then you can find out what are the further classifications. Okay. Coming back here. So now if I define it in simple words, classification. So what is the classification? It is nothing but categorization. Categorization. अब कैटेगरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रैंक. ओके, तो किस रैंक के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. सो द रूल इज, बेसिक रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, very basic rule of classification is that we classify from simple to complex. कभी भी लाइफ में कोई भी क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, आप हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. या आपने क्लास 10th में पढ़ा है
classification and evolution also you studied gradual change। तो जो क्लासिफिकेशन है वो भी किस पर डिपेंडेंट है, इवोल्यूशन पे। मेन सबसे पहले हम सिंपल एनिमल्स या प्लांट्स की स्टडी करते हैं, देन स्लोली वी स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स वन, और उसी हिसाब से उनको हम कैटेगराइज करते जाते हैं, राइट। इवोल्यूशन भी ऐसे ही है। इवोल्यूशन का मतलब ही है सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। सो मेन थिंग इज दिस, वी ऑलवेज क्लासीफाई फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। Class 9th you studied diversity, and in class 9th do you remember the divisions of plant kingdom? मतलब प्लांट्स क्या होते हैं, दोज हु आर हैविंग सेल वॉल इन देयर सेल एंड दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस। बट प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया गया है, तो कैसे कैसे क्लासीफाई किया है वो देखते हैं। हो सकता है आपको याद हो। तो प्लांट किंगडम को डिवीज़न में डिवाइड किया है, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2। अभी हम मेन स्ट्रीम में नहीं है, ये ध्यान रखना ना, मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ आपको, जो आपको पुराना कनेक्ट करना है इसमें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट। डिवीज़न 3, डिवीज़न 4 एंड डिवीज़न 5। प्लांट्स को फर्दर क्लासीफाई किया, तो देखते हैं डिवीज़न 1 क्या है। आपको याद है तो बोलिए तो ज़रा। थैलोफाइटा फर्स्ट डिवीज़न था, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हमने कहाँ से शुरू किया, थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ वगैरह कुछ भी नहीं होता, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता, टेरिडोफाइटा में है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। लेकिन टेरिडोफाइटा में सीड्स नहीं है, फिर इसमें सीड है लेकिन इसमें फ्लावर नहीं है, इसमें फ्लावर और सीड तीनों है। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग, ये बिल्कुल सिंपल टाइप के प्लांट थे, देन वी क्लासीफाइड समहाउ कॉम्प्लेक्स। तो ये थैलोफाइटा है सिंपलेस्ट वन, और ये एंजियोस्पर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, देन वी ऑलवेज मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है। तो ये थंब रूल याद रखेंगे आप, जब क्लासीफाई करते हैं किसी चीज़ को तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक जो चीज़ बची है, कार्ल वोज ने जो क्लासीफाई किया सारे प्लांट्स एनिमल्स को इन हाउ मेनी कैटेगरीज, इन 3 कैटेगरीज, बट ही लेफ्ट वन थिंग। कार्ल वोज को आप याद रखना है, नॉट इंक्लूडेड वायरस को इंक्लूड नहीं किया, क्लासीफाई ही नहीं किया उसे। रीज़न इज, मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि वायरस जो है वो कैसे हैं, ए सेल्यूलर, मतलब इनमें सेल ही नहीं है। और आपको इधर देखा आपने कि सारा क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, सेल पे। तो जब उसका सेल और न्यूक्लियस ही नहीं है तो किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे इसे। दैट्स वाई कार्ल वोज एंड आर एच विटेकर बोथ लेफ्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। स्टिल
हालांकि अभी उनको एनिमल्स मान लिया गया, मतलब लिविंग मान लिया गया है, बट फिर भी मेनी साइंटिस्ट हैज़ कॉन्फ्लिक्ट्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अब वायरस ए सेलुलर का मतलब क्या है? सेल वो होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल हो। लेकिन वायरस में क्या है? न्यूक्लियस है नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ क्या है? या तो डीएनए है या फिर आरएनए है। तो ओनली जेनेटिक मटेरियल के बेस पे तो वायरस को आप किसी एनिमल या प्लांट के साथ तो नहीं रख सकते, राइट? क्योंकि ये सारा क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? सेल्स पर। ओके, ये भी जो आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेल्स, बट वायरस बिकॉज इट इज नॉट हैविंग सेल, सो इट इज ए सेलुलर, सो नोबडी क्लासिफाइड इट। ओके, ए सेलुलर, ये आप याद रखेंगे। ओके डियर, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है ये सब चीज़ें और उससे रिलेटेड है। ओके, तो क्लासीफाई कैसे करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स? लेकिन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चीज़ होना चाहिए, उस मतलब कैटेगराइज करने के लिए कुछ तो कैटेगरी हो। जैसे आप मान लो अलमीरा में किसी चीज़ को रखते हो तो इसका कुछ नाम होगा ना। सपोज ये स्पाइसेस है, ठीक है, स्पाइसेस में भी कैटेगरी है, ये कोरिएंडर है, ये क्यूमिन है, ये ऐसा है, तो उनका कुछ कैटेगरी का नाम है। तो जब किसी चीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं देन वी नीड सम कैटेगरीज, सो लेट अस सी कैटेगरीज। कैटेगरीज, इन कैटेगरीज को हम अब बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं टैक्सा। ये प्लूरल फॉर्म है, सिंगल को हम बोलते हैं टैक्सॉन। ओके तो साइंस मीन्स बायोलॉजिकल साइंस में उन कैटेगरीज का कुछ नाम है, ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा है। जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट टू यू। जैसे है, थोड़ा बोल्ड पेन से लिखते हैं ना। सबसे पहले आता है किंगडम, ओके फिर आता है फाइलम और डिवीज़न, फिर आता है क्लास, ठीक है, फिर आता है ऑर्डर, आफ्टर ऑर्डर फैमिली, आफ्टर फैमिली जीनस एंड आफ्टर जीनस स्पीसीज। तो ये कुछ कैटेगरीज के नाम हैं। मतलब किसी भी प्लांट या एनिमल को जब आप क्लासीफाई करेंगे तो उनकी ये सब चीज़ों का नाम बताएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, और किंगडम से भी ऊपर क्या है? कार्ल बूज ने क्या बताए थे? डोमेन्स। डोमेन्स, तो जरा नाम देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ह्यूमन की बात करें थोड़ा, ह्यूमन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो पहले भी बात किया है बट ठीक है। ह्यूमन को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है? तो ह्यूमन का डोमेन क्या है? ह्यूमन का डोमेन है यूकैरिया, मतलब इसकी सेल्स कैसे हैं? वेल डेवलप्ड है, यूकैरियोटिक है। किंगडम क्या है ह्यूमन का? एनिमेलिया, यहाँ जो इसने क्लासीफाई किया आर.एच. विटेकर ने। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्यों? क्योंकि बैकबोन होता है ह्यूमन में ना। क्लास क्या है? क्लास है मैमेलिया, क्योंकि ये इनके मेमरी ग्लैंड होती है, मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स।
ओके, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज प्राइमेटा। फैमिली क्या है? होमिनिडी। जीनस क्या है? होमो। स्पीसीज क्या है? सेपियंस। स्पेलिंग इज रॉन्ग, सेपियंस। तो ये स्पीसीज है और ये जीनस है ना? ओके, अब आपको याद है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होते हैं, जीनस एंड स्पीसीज। सो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। और क्योंकि लिख रहे हैं तो इसको सेपरेटली हम अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो ऐसे ही दुनिया का कोई भी प्लांट या एनिमल लेंगे तो उन सब को इस तरह से हम एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उनको उसका बताते हैं कि उसका डोमेन क्या है, उसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इन दिस वे वी कैटेगराइज इट, वी क्लासीफाई इट। सो दिस इज एक्चुअल क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन। क्लियर? एंड यहाँ पे कुछ मीन्स जो ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, सबको मिला के क्या कहेंगे हम? टैक्सा। और किसी एक को क्या कहेंगे? टैक्सॉन। तो स्पीसीज अकेला क्या है? इट इज़ टैक्सॉन। जीनस टैक्सॉन, फैमिली टैक्सॉन, ऑर्डर टैक्सॉन। बट सबको मिलाएंगे तो क्या कहेंगे हम? टैक्सा। अब इस प्रोसेस को, ये जो क्लासिफिकेशन है, मतलब वो भी एक सिस्टमेटिक जैसा ही है। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्योंकि हम किसी भी प्लांट एनिमल को कैटेगरी में या टैक्सा में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो इसमें नाम भी देना पड़ता है, उसको क्लासीफाई भी करना है, करेक्टराइजेशन भी करना है। तो टैक्सोनॉमी इट इज सिमिलर टू द टर्म सिस्टमैटिक्स। सेम ही है ना? ओके, अब आप यहाँ देखो, सबसे बड़ा कैटेगरी कौन सा है? डोमेन। डोमेन से थोड़ा छोटा क्या है? किंगडम। किंगडम से थोड़ा छोटा फाइलम और डिवीज़न। अभी फाइलम डिवीज़न क्यों? इफ़ वी आर डिवाइडिंग एनिमल्स मीन्स देन फाइलम विल बी यूज्ड, एंड इफ़ वी आर क्लासीफाइंग प्लांट्स देन डिवीज़न विल बी यूज्ड। ये कई बार एग्जाम में आता है, दैट यू क्लियर इट। For the plants we use division in place of phylum, and for animals we use phylum in place of division, means it is third category, third taxa. Class phylum से थोड़ा छोटा है in this way, and सबसे smallest taxon क्या है? Species. Species is smallest taxon. Okay, तो एक अब species से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है? Category is increasing. कैटेगरी का साइज बढ़ रहा है ना, मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर, सो दैट दिस इज कॉल्ड एज ओके। सो ये जो प्रोसेस है, आई थिंक समझ आएगा ना, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। इट इज़ हायरार्की। इट इज़ हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस जिसमें हम लोअर से अपर की तरफ चल रहे हैं। इट इज़ हायरार्की। और किसका हायरार्की है? टैक्सा का। टैक्सा का हायरार्की है ना, सो दैट इट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। Which hierarchy? Taxonomical hierarchy. Okay. I hope you are getting. So this was the main classification. Okay.
we arrange the taxa in a particular sequence. This sequence is called as taxonomical hierarchy. उसको अगर डायग्राम से शो करें, so biggest is domain, inside domain kingdom, inside kingdom phylum or division, inside division classes, inside classes orders, inside orders family, inside family genus, and inside genus species, right? So this is a particular sequence of arrangement or categorization, and this is called as taxonomical hierarchy. Clear? Okay. So I hope you have understood it, right? Okay. अब एक लास्ट बचा हुआ है, concept of species. Let us see, right? So let's continue. The topic is concept of species. The concept of species was given by Ernst Mayr. Already I told you in the first part, Ernst Mayr, he gave the concept of species. Before that, many people, main scientists, they all were confused what is a species and how it can be means defined. Ernst Mayr, ये नहीं यहाँ पे एन है, अर्नस्ट मेयर. उसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर 10 काऊ, 20 goats, 30 horses, 5 elephants, 5 human, 6 monkeys. मान लो इतने सारे एनिमल्स किसी एक ग्राउंड में हैं, राइट? तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ कितनी स्पीसीज हैं, हाउ मेनी स्पीसीज. क्या करेंगे आप? 20 + 10 30, 30 + 30 60, 60 + 5 65, 5 70, 76, 76 species or varieties. What? Is it correct? If your answer is no, then you are correct. No, it's wrong, right? So what is correct? Cow, all 10 cows are of one species. So one species. All goats are of another species. Horse, elephant. So total species 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So species are how much? How many? Sorry, 6. क्यों 6 भाई? काऊ और गोट तो दोनों मिल्क देते हैं, दोनों को हॉर्न होता है, दोनों को 2 कान 4 पैर होते हैं. सो हाउ दे आर डिफरेंट? This problem was solved by Ernst Mayr. He defined the species कि species किसे कहेंगे. First definition of species, he told, Ernst Mayr told that all the members
who can inbreed, ये टर्म आप याद रखना, inbreed सेक्सुअली, मतलब ऐसे एनिमल के मेंबर जिनमें आपस में रिप्रोडक्शन हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग, आपस में रिप्रोडक्शन। अब देखो काऊ का रिप्रोडक्शन गोट से तो नहीं हो सकता, इसलिए काऊ और गोट दोनों सेपरेट स्पीसीज है। हॉर्स कांट रिप्रोड्यूस विद ह्यूमन, और ह्यूमन कांट रिप्रोड्यूस विद मंकी, और एलिफेंट कांट रिप्रोड्यूस विद गोट। So because reproduction is not possible among the members of these 5-6 categories, so they are different species. All the members who can inbreed sexually are belonging to same species. अब जैसे काउज हैं, जितने भी काऊ होंगे आपस में उनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल है सेक्सुअली, सो दे ऑल काऊ विल बी ऑफ द सेम स्पीसीज। ऑल एलिफेंट्स कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, सो दे आर ऑफ सेम स्पीसीज, सेम वे ऑल, राइट। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज इज दैट द ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु कैन इनब्रीड, जिनमें आपस में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज। एंड सेकेंड थिंग, all the members of common species have common gene pool, ये याद रखेंगे। सेकेंड, पहला इनब्रीडिंग एंड सेकेंड इज कॉमन जीन पूल, मतलब वो सारे मेंबर्स जो एक ही स्पीसीज़ के हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम काऊ की बात करें तो जितने भी काउज हैं उनके आपस में जीन्स सिमिलर होंगे, उनका डीएनए मटेरियल जो है वो सिमिलर होगा, और मंकी से थोड़ा डिफरेंट होगा, या गोट से डिफरेंट होगा, एलिफेंट का गोट से डिफरेंट होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स कैन इनब्रीड, दे कैन रिप्रोड्यूस टू ईच अदर, एंड सेकेंड दे हैव similar or common genes or gene pool. So this is the definition of a species, okay, and this is the most important thing। फैमिली और जीनस और ये सब पता चल जाता है सिंपली, लेकिन स्पीसीज़ पता लगाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को चेक करने पड़ते हैं। बट उनमें सबसे मेन चीज़ क्या है, उनमें रिप्रोडक्शन करा कर देखते हैं क्या रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। इफ़ यस दे आर ऑफ सेम स्पीसीज, इफ़ नो different species, and if their genes are same they are of the same species, okay dear। So this was the concept of species। in the final note, इन सारी चीज़ों को समराइज करके Linnaeus published a book and the name of that book was Systema Naturae, okay। This was the book published by Linnaeus, Systema Naturae, where he described all the rules, regulation of nomenclature, taxonomy and all, and it is still relevant for classification, identification and nomenclature of the living organisms, right। You can go through the internet to find out about Systema Naturae, a book written by or published by Carolus Linnaeus। So dear students, here we have finished our chapter number 1. You go through the exercise. I have already sent you the deleted part and revised part. You go through them. If anything is left you are not getting, you can write in comment box, or you can directly ask me in the WhatsApp group, okay। Thank you so much, take care.